ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଫୋମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା CPET କମନ୍ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ 2024ର ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସିରିଜ୍ ଚାଲିଛି ତାର ପାର୍ଟ 40 ବା ଭାଗ 40 ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର 39ଟି ପାର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରିଛି, ମାନେ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ ଯାଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସରିଯାଇଛି। ତ ପୁଣି ଥରେ ସେଇଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିକି ଆମେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି, କାହିଁକିନା ତୁମେ ମାନେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ। ତ ଗତକାଲିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା ଆମର ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ସରିଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର କେଉଁ ଯୁଗ ସରିଥିଲା, ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ସାରିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସମୟସୀମା ଥିଲା କେତେ 1880ରୁ 1910 ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ସମୟସୀମା ଥିଲା 1910ରୁ 1920 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଛି। ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କାହାର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ପଚାରିବ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ସେତେ କମେଣ୍ଟ ଆସିନଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ମାତ୍ର କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯେ ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ମୁଖପାତ୍ରର ନାମ କ'ଣ ବୋଲି ସେଥିରେ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ କହିଦେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଯେ ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ, ସେ ଯେଉଁ ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ସେଇଟା ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଯୁଗର ପିଲାମାନେ ହେଲା। ସେ ଯେଉଁ ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ସେଇଟା ଭଗବତ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ 1935 ମସିହାରେ ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଇଟା ତୁମକୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ପଢ଼େଇବି ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ, ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇଥିଲା ତୁମର ଡାଉଟ୍ଟା କ୍ଲିୟର କରିଦିଏ। ତ ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁ ସଂସଦ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ତାର ମୁଖପାତ୍ର ରୂପରେ ଆଧୁନିକ ନାମକ ଗୋଟିଏ ମାସିକ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ମୁଖପାତ୍ର କ'ଣ, ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ମୁଖପାତ୍ର ହେଉଛି ଆଧୁନିକ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଇଟା ପୁଣି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମାନେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଆସିଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଲି। ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ଆସିଛି ମାନେ ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖ କେତେଟା ଜିନିଷ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କ ବହିରେ ଟିକେ ଅଲଗା ଦେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବହିରେ ଟିକେ ଅଲଗା ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମାନେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କ ବହିକୁ ପ୍ରଥମେ ଫୋକସ୍ କରିବ, ସେଇଠି ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେଲା। ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ ତୁମର ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଆସିଛି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସରିଲା ପରେ କହିଦେବି। ତ ଦେଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ ସବୁଜ ଯୁଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ସବୁଜ ଯୁଗର ସମୟସୀମା କେତେ ପିଲାମାନେ 1921ରୁ 1935 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇଟା ଥିଲା ସବୁଜ ଯୁଗର ସମୟସୀମା। ଅନ୍ନଦାସଙ୍କର ରାୟ, କାଳିନୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀ, ହରିହର ମହାପାତ୍ର, ଏହି 5 ଜଣ ତରୁଣ ବନ୍ଧୁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବେଳେ ନନସେନ୍ସ କ୍ଲବ ଗଠନ କରି ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର ଆଲୋଚନାକୁ ତର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନନସେନ୍ସ କ୍ଲବ କେଉଁ ଯୁଗର ବା କେଉଁ ଯୁଗର କବିମାନଙ୍କ ସମୟରେ ବୋଲେ ତୁମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ତ ନନସେନ୍ସ କ୍ଲବ କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯେ ସବୁଜ ଯୁଗର କବିମାନେ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି ତରୁଣ ବନ୍ଧୁମାନେ କିଏ କିଏ, ଅନ୍ନଦାସଙ୍କର ରାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, କାଳିନୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀ ଆଉ ହରିହର ମହାପାତ୍ର ହେଲା। ଏମାନେ ଅବକାଶ ନାମକ ହାତଲେଖା ପତ୍ରିକା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଲେଖାମାନ ସ୍ଥାନ ପାଉଥିଲା। ଅବକାଶ କିଏ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ତ ସେଇଟା କିଏ, ଯେ ସବୁଜ ଯୁଗର କବିମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ନନସେନ୍ସ କ୍ଲବ ବି କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ସବୁଜ ଯୁଗର କବିମାନେ ହିଁ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଅବକାଶ ଏହି 4ଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣର 4 ଜଣ ଦେଖ, ଯେଉଁ ଅବକାଶ ଯେଉଁ ଅରେ ଅନ୍ନଦାସଙ୍କର ରାୟ, ବରେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, କାରେ କାଳିନୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ଫରେ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀ। ହରିହର ମହାପାତ୍ର ଟିକେ ଡେରିରେ ଏହି ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ନାମ ଏଥିରେ ସଂଲଗ୍ନ ନଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ଯେଉଁ ଅବକାଶ ଯେଉଁ ପତ୍ରିକା ସେଇଟା ସବୁଜ ଯୁଗର କବିମାନଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲ 4ଟି ଅଙ୍କରେ 4 ଜଣଙ୍କର ଅରେ, ବରେ, କାରେ ଏବଂ ଫରେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହରିହର ମହାପାତ୍ର ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାମ ସେଇଥିରେ ସଂଲଗ୍ନ ନଥିଲା। ଅବକାଶର ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଅନ୍ନଦାସଙ୍କର ରାୟ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଅବକାଶ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱରେ କିଏ ଥିଲେ, ଅନ୍ନଦାସଙ୍କର ରାୟ। ସବୁଜ ଦଳର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ସବୁଜ କବିତା 1933 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଦେଖ ସବୁଜ ଦଳର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ କ'ଣ, କେତେଜଣ ପିଲାମାନେ ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି, ସବୁଜ ଦଳର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ କେତେଜଣ ଯୁଗଭିନା ଲେଖିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁଜ ଦଳର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ସବୁଜ କବିତା, ଯେଉଁଟାକି 1933ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଯୁଗଭିନା 1932ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ହରିହର ମହାପାତ୍ର। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ ଅବକାଶର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ, ଅବକାଶର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଅନ୍ନଦାସଙ୍କର ରାୟ। ସବୁଜ ଦଳ, ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁଜ ଯୁଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସେଇ ସବୁଜ ଦଳର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା ସବୁଜ କବିତା ଏବଂ ସେଇଟା 1933ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯୁଗଭିଣା 1932ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାହାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ହରିହର ମହାପାତ୍ର। ବୁଝିହେଲା? ଯୁଗଭିଣା କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ 1932, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ, ଯୁଗଭିଣା କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା 1932ରେ ଏବଂ ତାହାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ କିଏ, ହରିହର ମହାପାତ୍ର। ସବୁଜ ଶବ୍ଦଟି ବେଶ୍ ଅର୍ଥଦ୍ୟୋତକ, ଏହା କଞ୍ଚା, ତରୁଣ, ଜୀବନମୟତା, ଅଶେଷ ସମ୍ଭାବନାର ପ୍ରତୀକ। ସବୁଜ ଶବ୍ଦଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ନଦାସଙ୍କର କବିତାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ବାୟବାରୀ ଉପନ୍ୟାସ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ବାୟବାରୀ ଉପନ୍ୟାସକୁ 12 ଜଣ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 9 ଜଣ ଲେଖିଥିଲେ। ତ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସକୁ କେତେ ଜଣ ରଚନା କରିଥିଲେ, ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସକୁ 9 ଜଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ 9 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ବି ତୁମକୁ କହିଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେଥି ଭିତରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବନି, ଖାଲି ଗୋଟେ ଜାଣିଥାଅ ଯେ ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ ସବୁଜ ଯୁଗର ରଚନା ଏବଂ ତାହାକୁ 9 ଜଣ ରଚନା କରିଥିଲେ।
लिखिले एवं बंगलार जो बायोबारी उपन्यास ताहाको 12 जन लिखिले। तो बुझीगला केते गुडी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आमर देखिलो जे नॉनफेंस क्लब की गठन करथिले सबुज जुगर आमर कहिबने नॉनफेंस क्लब गठन करथिले अवकाश पत्रिका मध्ये सबुज जुगर हला 4 जनकर ना जानिलो अवकाशर संपादक दायित्व थिले कि अन्नदाशंकर राय। सबुज कविता सबुज दरर प्रथम कविता होची सबुज कविता जहा कि 1933 रे प्रकाशित होइतिला। जोगभीणा 1932 रे प्रकाशित होइतिला एवं तार संपादक थिले हरिहर महापात्र। जानिल तापर बंगला पर बायोबारी उपन्यास को रचना करथिले 12 जन एवं ओडिया रे बाफंती उपन्यास को रचना करथिले 9 जन। बुझियला किछि भी तुमरो डाउट होची बा किछि भी जदि तुमरो बुझिबार असुविधा होई तार तुम मते निश्चित कमेंट करी कि कहि पारिबो। तो आलोचना करिया प्रथमे सबुज जुगर कालिनी चरण पाणिग्राही संपर्क रे ए समय सीमा एटा जानिबा फित आवश्यकता नाही हला। देखो कालिनी चरण सबुज जुगर वयोज्येष्ठ कवि कविंकर प्रारंभिक रचना होची विरोही যক্ষ রজ ব্যর্থ স্বপ্ন ইত্যাদি রচনা করেছিলেন কালিনীচরণ পাণিগ্রাহী। কবিঙ্কর কবিতা গ্রন্থ গুড়ি হচ্ছে ছোটিটিয়ে লোড়া মনে নাহি মহাদীপ ক্ষণিক সত্য মো কবিতা হ্যাঁ। তো কালিনীচরণ পাণিগ্রাহী মানে এতে গুড়িয়ে দেখ বিরহ যক্ষ রজ ব্যর্থ স্বপ্ন রচনা করেছেন তা সহিত ছোটিটিয়ে লোড়া মনে নাহি মহাদীপ রচনা করেছি। কিন্তু কালিনীচরণ পাণিগ্রাহী প্রসিদ্ধ হচ্ছেন উপন্যাস পাই। তাঁর উপন্যাস হচ্ছে মাটির মণিফ 1931, লোহার মণিফ, আজির মণিফ, অমর চিতা, मुक्तागढ़ क्षुधा यही उपन्यास गुड़िक ही कालिनी चरण पाणिग्राही प्रसिद्ध। तेणु ये उपन्यास क्वेश्चन आसी थाए उपन्यास गुड़िक मन रखि था जो ये 5 गोटे उपन्यास जो माटिर मणिफ, लोहार मणिफ, आजिर मणिफ, अमरचित और मुक्तागढ़ क्षुधा गुड़िक मन रखि था। और ये कविता गुड़िक भी मन चाहिए मन रखिपार कि ये भितर क्वेश्चन आसेनि ये भितर मैंने जी जो प्रसिद्धि अर्जन कर किए गल्प तो गल्पर क्वेश्चन आसो किए उपन्यास उपन्यास क्वेश्चन आसीज कि जड़े जो उपन्यास प्रसिद्ध और कवितार जो क्वेश्चन आसला ताईटा मानने बैचान्स आसी कि से आसेनि। माटिर मणिफ उपन्यास मध्य सर्वश्रेष्ठ देख पे कालिनी चरण पाणिग्राही जहाँ जहाँ उपन्यास रचना कर माटिर मणिफ उपन्यास मध्य सर्वश्रेष्ठ। यार मुख्य चरित्र बरजुगु से गांधीजी आदर्श चरित्र अनुप्राणित कर जानी माटिर मणिफ आम पढ़ी तुमको मुझे पढ़ी तुम जो 6th सेमेस्टर था तो माटिर मणिफ तुम ठीक से पढ़ी कहीं से चरित्र मध्य क्वेश्चन आसीपारे। तो यार मुख्य चरित्र हूँ बरजु तुम सिलेबस जेहतु अच्छी से माटिर मणिफ गुड़ी ठीक से पढ़ी देता मुझे पढ़ी है प्लेलिस्ट को जाकि तुम देखिपार। तांकर मुक्तागढ़ क्षुधा अमरचिता उपन्यास द्वय रचित होइछि दुर्भिक्षर पट्टभूमि माने जो कहार जे कविंकर कालिनी चरण पाणिग्राही मुक्तागढ़ क्षुधा और अमरचिता यही उपन्यास द्वय कौन रचित होती दुर्भिक्षर पट्टभूमि मैंने से समय दुर्भिक्षर चित्र आम से देखा पाई था। बुझीगला माटिर मणिफ तुम कौन देख जे फोम थिएटर यूट्यूब चैनल को जाइए प्लेलिस्ट तुम जो 6th सेमेस्टर तुमको जो पढ़े 2टा पार्ट में माटिर मणिफ पढ़े से तुम तार स्टोरी बुझी नब और कौन कौन चरित्र मान रही से जो से गाँ किए मुख्य चरित्र कहार आदर्श को लेकिन रचना कराई सब जिन तुम मैंने ठीक मन रखि कहीं से भर क्वेश्चन निश्चित भाव में गोटे क्वेश्चन आसी जाए माटिर मणिफर है। देख कथा साहित्य में परिचित कालिनी चरण पाणिग्राही उपन्यास गुड़िक आम जाना जपरिक आम माटिर मणिफ, लोहार मणिफ, मुक्तागढ़ क्षुधा, अमरचिता से गल्प गुड़िक देख राशिफल, शेषरश्मि, सागरिका, द्वादशी, मो कथाटी सरीनी नाटक गुड़िक प्रियदर्शी, सम्या, पद्मी किंतु ए भर क्वेश्चन आसेनि। ये जानी लोकप्रिय गल्प हूँ मानसर विलाप है जो कि आदर्शवाद फुटी उठी मानसर विलाप जो कि आदर्शवाद फुटी उठी मन रखि था उपन्यास मन रखा पाने जब तुमको कहली माटिर मणिफ, आजिर मणिफ, मुक्तागढ़ क्षुधा, अमरचिता से गल्प गुड़िक देख राशिफल, शेषरश्मि, द्वादशी, सागरिका, मो कथाटी सरीनी यहाँ मन रख है। प्रबंध गुड़िक देख प्रबंध से क्वेश्चन आसेनि। आत्मजीवनी देख जहाँ अंगे निभेई देख पे तुमको कही मुझे कालिनी चरण पाणिग्राही जहाँ अंगे लिभेई कि कालीचरण पट्टनायक कौन कुंभार चक कालीचरण पट्टनायक आउ कालिनी चरण पाणिग्राही को भीतर तुम मैंने कन्फ्यूज हेबनी प्रायतः पिला मैंने नहीं कन्फ्यूज होती मैंने कालीचरण पट्टनायक को कालिनीचरण करदे कालीचरण माने कालिनीचरण पाणिग्राही को कालीचरण पट्टनायक करदे कालीचरण पट्टनायक को कालिनीचरण पट्टनायक करदे कालिनीचरण पाणिग्राही करदे। तो सेटा करबोनी तुम मैंने तुम जानी था जी जहाँ अंगे निभाई आत्मजीवनकार कालिनीचरण पाणिग्राही है आउ कुंभार चक कालीचरण पट्टनायक दीटा डिफरेंट कालीचरण पट्टनायक अलग कालिनीचरण पाणिग्राही अलग जपरिक गोदावरी मिश्र गोदावरी महापात्र भर पिलांर कन्फ्यूजन देखा जाए। तो से भाव में मैंने कन्फ्यूज हेनी पे भावी चिंती कि ठीक से तुम रईट आंसरटा देव कहीं गोटे गोटे मार्क भी तुम ये सीपीटी एंट्रांस देव ना तुम गोटे गोटे मार्क भी बहुत इंपोर्टेंट हो पाए से तुमको थ्योरी क्लास पढ़ी जहाँद्वारा कि तुम मैंने सब क्वेश्चन तुम कवर हो तुमको जो केवल शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेबी शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कशन करी तुम सब क्वेश्चन कवर हो पार ना जब सब क्वेश्चन कवर न हुए तुमको जो मुझे इंपोर्टेंट बोली कहीदेवी से इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसो तो किसी मायना ना कि गारंटी दे पारिनी से क्वेश्चन आसो कहीं मुझे क्वेश्चन बनाऊनी। तो से जो गुड़िक मानने पूरा पूरी थ्योरी आम आलोचना करूँ जो भर क्वेश्चन आसार संभावना अच्छी सब किसी पढ़ा ताले क्वेश्चन बाहर कौट आसो आम पाखे बर्तमान भी 40 दिन समय अच्छी आम आराम से पढ़ी पार बुझीगला। तो आम आलोचना कला देख कौन कौन सबुज जुग आम टी आलोचना कला कालिनी चरण पाणिग्राही आलोचना कला। नेक्स्ट देखा देख अन्नदाशंकर राय
ତାଙ୍କର କବିତା ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସହକାର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ଛାଡ଼ ସେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁକୂଳରେ 1931ରେ ପ୍ରକାଶିତ ସବୁଜ କବିତା ସଂକଳନରେ ତାଙ୍କର 7 କବିତା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖ ଯେ ସବୁଜ କବିତା କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁକୂଳରେ 1931ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତୁମକୁ ସେଇଟା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ବୋଧେ ସବୁଜ କବିତା କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖ ସବୁଜ କବିତା देखो सबुज कविता 1933 प्रकाशित होता देख देखो के देखो ये सबुज कविता 1931 है। तो ये दी भर क्यों रईट आंसर से तुमको नेक्स्ट पार्ट में कमेंट करके कहीदेवी सबुज कविता के प्रकाशित होता बोली बुझीगला। तो कहीं दी मैंने अलग अलग टे तो से कन्फ्यूजन देखा तो मुझे तुमको पे नेक्स्ट क्लास यहाँ पार्ट 40 ना पार्ट 41 रे भाग एक्चुअली तुमको मुझे कहीदेवी जे प्रकृत 31 हे ना 33 हे बुझीगला सबुज कविता। ये गोटे क्वेश्चन तुम डाउट रहा डाउट नेक्स्ट पार्ट तुमको यहाँ मुझे कहीदेवी। देख सबुज साहित्य अनुकूल सबुज कविता जो संकलन होता है 7टी कविता कहार अन्नदासंकर रायंगर परीक्षा प्रश्न भी आसीजापे जे सबुज कविता संकलन में अन्नदासंकर रायंगर केतोटी कविता प्रकाशित होता है प्रलय प्रेरणा सजनी सृजन स्वप्न मानसीय मु यौवन थरे गले परिमहल प्रणयी कमल विलासर विदाय एसबू से प्रकाश पाई। अन्नदासंकर 15 कविता रचना करते से 20 वा 22 प्रबंध रचना करते। साहित्यिका उच्चकोट आलोचना क्वेश्चन आसे छाड़ प्रबंध गुड़िक हूँ प्रबंध गुड़िक देख पिला प्रबंध गुड़िक अनेक गुड़े रही समर साहित्य भारतर चित्रशिल्पी खोला चिठी है नारीर मुक्ति। तो ये प्रबंध क्वेश्चन से आसेनी अन्नदासंकर रायंगर प्रबंध से क्वेश्चन आसेनी है। गल्प हूँ स्वप्न बासंती उपन्यास 3 परिचय जो बासंती उपन्यास जो रचना होता है जो कही केते जन कवि रचना करते बासंती उपन्यास 9 जन रचना करते। तो से कौन से 3 परिच्छेद बासंती उपन्यास 3 परिच्छेद क्या द्वारा रचित अन्नदासंकर राय द्वारा रचित होता। 18 वर्ष बयस में ओडिया साहित्य पहुँचली 22 वर्ष बयस में ओडिया साहित्य मिलानी नेली से कहते। तो से कहते से 18 वर्ष बयस में ओडिया साहित्य को पहुँचले और 22 वर्ष बयस से मेलानी नेले बोली से कही। तो बुझीगला। तो आलोचना कर सारे आम कौन पर जे अन्नदासंकर राय आउ कालीचरण पाणिग्राही सबुज जुग तो आम गोटे पिला डाउट थी कौन आम से डाउटा जे मुझे तुमको जो कही देख जुग विन्यास 1932 कि सबुज कविता गोटे 1933 1933 प्रकाशित होता गोटे लिखिदी आउटे लिखी जे आउटे लिखी कौन लिखी आउटे लिखी सबुज कविता टिके हाँ सबुज कविता 1931 लिखी। तो 1931 में 1933 जो डाउट रही है डाउट को से डाउट ही आज पार्टी को आम एतिक बंद करवा कहीं आउ टे अच्छे पे जो भिडियोटा लंग करते 20-25 मिनट होता कि आज भिडियो को एतिक रखा और तुम से जो डाउट रही है डाउट को फास्ट क्लीयर कर दी कहीं तुम सब जो तुमको प्रगतिवादी जुगे पढ़ेबे तुम मन रखिपार ना। तो तेणु मुझे भिडियो को आज भिडियो को एतिक स्टॉप करवा और मुझे नेक्स्ट देखी तुम मतलब लगुच 1931 बोल कहीं सब अलग अलग देती ओडिया साहित्य इतिहास मुझे नित्यानंद महापात्र सब संप्रदाय बुकटा टी देखी दिए आउ तुमको मुझेदेवी है। नेक्स्ट पार्ट आम आलोचना करवा आज ही आलोचना करवा है 6:13 होती 4-5 मिनट भितर सेकेंड क्लास तुम स्टार्ट करदेवा। तो आज भिडियो देख हे गोटे कन्फ्यूजन तुम से नेक्स्ट क्लास दूर करदेवी आगे जो तुम किसी डाउट रहा कि बुझी न पार निश्चित भाव में कमेंट करके जन पार भिडियो पर्यटन देखी समस्त धन्यवाद। जय जगन्नाथ पुणी थे समस्त हृदय धन्यवाद। जय माँ समलेई।